Hello everyone. In the previous modules, what we understood is Meiosis-1. We also understood the phases of Meiosis-1. We discussed what is Prophase-1 and also had a glance about the phases, which are the subtypes of the Prophase-1. Now, the next phase which is involved is called as Metaphase-1. Yes. Now, let's understand what is happening in Metaphase-1. What are the characteristic features in Metaphase-1? Now, in Metaphase-1, the spindle fibers which were formed in the Prophase-1 are well developed. Yes, they are well developed, and also tetrad. You remember tetrad? Yes, tetrad which are formed now will move towards the equator. Yes, meta, you remember meta मतलब middle, बीच में, equatorial plane. So therefore tetrad will move towards the equatorial plane. Now similarly due to the, now listen to this, okay, due to the increasing repulsive forces, due to increase in repulsive forces in between chromosomes, okay, chromosomes के बीच में repulsive forces बढ़ने के कारण what will happen is they are now chromosomes, okay, they are ready to separate. Chromosomes are now ready for separation. So metaphase में वही तो हो रहा है, metaphase के अंदर separation will start. Okay, let's understand diagrammatically. Diagrammatically क्या है इसके अंदर, let's understand that. Let's draw quickly one cell. Yes, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी गायब हो चुका था, बराबर, प्रोफेज में ही गायब हो गया, तो सो वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ दैट. लेट्स ड्रॉ द क्रोमोसोम्स. आई विल यूज डिफरेंट कलर्स. ओके, नाउ सो एक क्रोमोसोम यहाँ पे, एक क्रोमोसोम यहाँ पे. यस, देन next we have to also shade, the regions have to be shaded, that is pending, that will do. This is one set of chromosome. Let's draw the another set here. So chromosomes are now have just come to the middle area, the equator area. Okay, so equator area में वो लोग आ गए हैं और वो लोग अभी सेपरेशन के लिए तैयार है. तो सेपरेशन करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं. सो आई एम जस्ट कलरिंग द एरिया विच इज़ द होमोलोगस रीजन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था. ओके, लेट्स कलर दैट. सो ऑन द लेफ्ट साइड there has to be, here it has to be blue. Yes, this region has to be blue and last one has to be pink, this region. Okay, so this is what it is. There will be also now यहाँ पे let's use some different color. अभी यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे आपका सेंट्रियोल है. ठीक है, यहाँ पे आपका सेंट्रियोल है. Here also you have centriole. ठीक है, now वो लोग क्या करेंगे, they will now release the spindle fibers. Okay, something like this. अभी तक सेपरेट हुए नहीं है. ओके, जस्ट स्पिंडल फाइबर्स आर रिलीज्ड. ओके, समथिंग लाइक दिस, स्पिंडल फाइबर्स आर रिलीज्ड. नाउ दिस एरिया, ये जो है, कैन यू सी दिस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टेट्राड. बराबर ना, बराबर ना. दिस एरिया इज कॉल्ड एज पोल. This region is pole region and ये क्रोमोसोम जो आप देख रहे हो, these are your recombined chromosomes. Recombined chromosomes. Okay, okay. Now this ये हुआ मेटाफेज. मेटाफेज हो गया. अभी मेटाफेज के बाद दूसरा फेज कौन सा है? मेटाफेज के बाद दूसरा फेज कौन सा है? Can you recollect? Can you recollect? Yes, very correct. Very correct. The next phase which is involved is what is called as anaphase.
Now the process, if you have understood the basics, the process will be much simpler for you. ओके, प्रोसेस ना बहुत इजी हो जाता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल बी पुल्ड अवे, सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, एनाफेज में सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, कैरीड टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, कैरीड टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. ठीक है, डायग्रामेटिकली समझेंगे, डेफिनेटली समझेंगे. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ वन थिंग which is like a bit peculiar to note here, that the two sister chromatids I hope by this time now you know what are sister chromatids. Okay, जो sister chromatids है they will not separate in meiosis 1, वो लोग नहीं सेपरेट होंगे. अभी सिर्फ क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और क्रोमैटिड है ना वो अभी सेपरेट नहीं होंगे, वो meiosis 2 में सेपरेट होने वाले हैं. ठीक है, सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है. उसके बाद क्रोमोसोम्स जो है दे आर कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर, बराबर, दे आर कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर. दिस ऑल्सो हैव सेड यू अर्लियर. ना उसके बाद द रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स, रिकम्बाइंड मतलब जिसका क्रॉसिंग ओवर हुआ है. ठीक है, नाउ द रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स विल बी कंप्लीटली सेपरेटेड. वो सेपरेट हो चुके हैं और वो अभी धीरे धीरे अलग अलग सेल्स में जाएंगे. चलो इसका भी डायग्राम देख लेते हैं. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. हियर आई हैव टू ड्रॉ अ बिट ओवल हियर. Let's first draw the centromere. Fine. Centriole. This is here. This is our centriole, spindle fiber वाला. उसके बाद let's draw chromosome. Then the next color which is there here, so यहाँ पे देखो, if you notice carefully, chromosomes have separated. chromosomes अभी ना सेपरेट हो चुके हैं. अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो क्रोमोसोम सेपरेट होगा. पहले हम लोग 2 ही क्रोमोसोम अभी बना रहे. ठीक है, 2 क्रोमोसोम बना रहे. तो इसका दूसरा भाई नीचे होगा, इसका दूसरा भाई नीचे होगा यहाँ पे. यस, समथिंग लाइक दिस. देन ब्लू, ओके, यहाँ पे लेट्स फिल इट अप एंड देन here. Okay, something like this. The next ऐसे सिमिलर ग्रीन एंड रेड क्रोमोसोम का भी होगा. ठीक है, ग्रीन एंड रेड क्रोमोसोम का भी होगा, वो भी तो आएंगे. ओके, सो अभी फटाफट हम लोग वो भी बना लेते हैं. ठीक है, इधर वी हैव टू गिव अ रेड कलर. Yes, and then you have red wala chromosome here, and then let's fit in here. Okay, so this is what it is. So green यहाँ पे green आ जाएगा. Okay, अभी सेपरेट हो चुके, स्पिंडल फाइबर लगा देते हैं.
स्पिंडल फाइबर अटैच करवा देते, ये देखो दिस इज योर स्पिंडल फाइबर, समथिंग लाइक दिस, यस, बीच में भी देयर विल बी फाइबर्स, ओके ओके, दैट इज हाउ द क्रोमोसोम्स हैव नाउ सेपरेटेड। ठीक है, अभी जो बीच वाले ये जो देखो ना, इफ यू नोटिस केयरफुली, दिस बीच वाले फाइबर्स आर कॉल्ड एज इंटर polar fibers, just a name, a type of a spindle fiber only। यहाँ के है उसको आप बोलते हो क्रोमोसोमल फाइबर, ओके। दिस इज योर स्पिंडल अपैरेटस, मतलब सेंट्रियोल जो स्पिंडल रिलीज करता है उसको आप बोलते हो स्पिंडल अपैरेटस, ओके। एंड यहाँ से ऐसा these rays the rays are called as astral rays, okay। So this is what is anaphase 1। now anaphase 1 में what is happening is there is separation of chromosomes, okay, as you can see in the diagram there is separation of chromosomes। एक बार क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, अभी उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे वो, now they will go to the telophase, so let's understand telophase now, okay। telophase समझ लेते हैं, telophase होता क्या है। now in telophase 1, okay, ये देखो यहाँ पे सिंपलेस्ट है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपलेस्ट फेज है, ठीक है। द हैप्लॉइड क्रोमो, जो हैप्लॉइड अभी सिंगल हो गए ना, तो जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स है, ठीक है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स जो है वो जैसे पहुंच जाएंगे पोल्स पे वैसे ही अनकॉइल हो जाएंगे, okay, दे विल अनकॉइल, उनका काम हो गया ना, अनकॉइल हो जाएंगे एंड विल बिकम elongated, ओके। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस विल रीअपियर। अभी इनका भी काम हो चुका है कंप्लीट, सो दे विल ऑल्सो कम बैक, ओके। नेक्स्ट पॉइंटर, देर इज फॉर्मेशन of two daughter cells नहीं, स्टूडेंट्स, there is formation of two daughter nuclei। अभी तक साइटोप्लाज्म कहाँ पे डिवाइड किया, now we have not divided cytoplasm, yes, साइटोप्लाज्म तब तक डिवाइड नहीं किए हैं, तो अभी इसका ही नेक्स्ट स्टेप इज डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यू अग्री टू मी। तो अभी नाउ साइटोप्लाज्म देख लेते हैं कैसे डिवाइड होगा, वाया प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। As cytokinesis, this division of cytoplasm is the extension of Meiosis-1, so therefore this process or this step is also called as Cytokinesis-1, okay। now immediately after karyokinesis, जैसे ही karyokinesis न्यूक्लियस का डिविजन खत्म हो गया, cytokinesis will take place, okay, cytokinesis will take place and cytokinesis होने के बाद there is formation of two haploid, अभी आप बोल सकते हो cells, okay। now in many cases what happens is sometimes these daughter cells, ये जो daughter cells बने ना, ठीक है, ये जो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं, these daughter cells may pass through short resting phase, they may pass through what is called as short resting phase is a phase where these cells might stop for a while, okay, which is also called as interphase। ये हम लोगों ने सेल साइकिल में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, इंटरफेस बोल सकते हो या फिर इंटरकाइनेसिस बोल सकते हो। एंड कभी कभी क्या होगा, चेंजेस ऑफ द टीलोफेज में नॉट ऑकर ओनली, ओके, जो टीलोफेज में चेंजेस हो रहे हैं ना, चेंजेस, ओके, वो कभी होंगे ही नहीं, ओके। सो द टीलोफेज मे नॉट ऑकर,
दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। ओके, फिर अगर चेंजेस नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, द सेल इन एनाफेज 1, the cell in anaphase 1 will directly enter in the prophase of meiosis 2। मतलब टीलोफेज एक्चुअली होगा ही नहीं, टीलोफेज एक्चुअली होगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली। डायग्रामेटिकली इसको समझने का कोशिश करते थोड़ा सा। लेट्स elongate this a bit, there's one more which is required, I'm going to stick it here। ओके, नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे आने लगा है, तो अपन डॉटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलरेडी आ चुका था तो उसका बना दिया हम लोगों ने। ओके, let's also draw nucleolus here, न्यूक्लियोलस भी आ गया, ठीक है। अभी सब जो इजी वाले पार्ट्स है, लेट्स ड्रॉ दैट फर्स्ट। ओके, देन यू हैव सेंट्रियोल हियर with astral rays। okay, now drawing the chromosomes, now drawing the chromosomes। अभी देखो यहाँ पे एक क्रोमोसोम, okay, यहाँ पे एक क्रोमोसोम, उसके बाद one more chromosome। okay, that recombination वाला thing will be there, okay, nothing to worry about it। वो recombination वाला जो part रहेगा वो तो definitely रहेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बना दिया, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बना दिया। ओके ओके, देन दूसरे भी क्रोमोसोम पे something like this। okay, this is what it is। now the nuclear membrane, this nuclear membrane will reappear, okay, will reappear, and there is formation of two daughter cells। okay, so this completes your meiosis 1, this completes your meiosis 1। अभी इसके अंदर देखो एक चीज याद रखो, meiosis is a process in which there is formation of 4 daughter cells। अभी daughter cells बने कितने, अभी मुझे बात बताओ, डॉटर सेल्स टोटल कितने बने हैं? अभी तो बने हैं 2 ही, ठीक है, अभी तो दो ही बने हैं, मुझे और 2 बनाने हैं। आई वॉन्ट टू मेक मोर 2। ओके, सो अभी क्या होगा, अभी इसका फर्दर प्रोसेस हो जाएगा। अभी फर्दर प्रोसेस क्या, फर्दर प्रोसेस इज meiosis 2। तो चलो meiosis 2 is simple। meiosis 2 is very simple because it does not involve so much complications। okay, so now the next type of division is what is called as meiosis 2। okay, abhi what exactly is happening in meiosis 2? Let's have a quick brush up। okay, what is happening in meiosis 2 is 2 haploid cells of the previous division, that is meiosis 1 से जो 2 haploid cells बने हैं ना, उससे क्या हो जाएगा, they will undergo further division, they will further divide and will form total 4 daughter cells। इसको ही तो आप बोलते हो ना meiosis 2। yes, now the second meiotic division is very similar to what is called as mitosis। okay, ये सिमिलर है बिकॉज इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, माइटोसिस जैसे एकदम सिंपल डिवीजन हो जाता है। सो ये दिस स्टेटमेंट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट
where second meiotic division is similar to mitosis. ठीक है, and why do we say this? Why do we say this? Because the daughter cells, जो daughter cells बने ना meiosis 2 के अंदर, daughter cells which are formed in meiosis 2 are similar, they are identical to the पेरेंटल सेल या पेरेंट सेल. पेरेंट सेल से एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, इसकी वजह से दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू माइटोसिस. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ होमोटिपिक डिविजन. ये हम लोगों ने लास्ट मॉड्यूल में देखा. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज होमोटिपिक डिविजन. ओके, नाउ लेट्स जंप टू द मेन फेजेस. Meiosis 2 के अंदर कौन से फेजेस होते हैं? आई थिंक नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर दिस. यस, कौन से फेजेस होंगे? करेक्ट. सबसे पहला इज प्रोफेज 1, प्रोफेज 2. बराबर. नाउ प्रोफेज 2 के अंदर क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स आर डिस्टिंक्ट. क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट आर डिस्टिंक्ट, विजिबल है. ठीक है, दे आर क्लियरली विजिबल. ओके, उसके बाद सेंट्रियोल का डिवीजन. सेंट्रियोल विल डिवाइड. ओके, बिकॉज अभी वापस स्पिंडल फाइबर लगने वाला है मुझे. ठीक है, विच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 2 सेंट्रियोल्स. 2 सेंट्रियोल बने. यस, and they will travel to the opposite poles because वहाँ से स्पिंडल फाइबर चालू होने वाला है. ठीक है, नाउ देखो एक ट्रेंड है प्रोफेज में. होता क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस will disappear. Okay, shall we understand this diagrammatically? Okay, now यहाँ पे हम लोग अगर सेल बनाए, let's draw one more. That recombination wala thing will remain same. Okay, that will remain same. There are no changes in that. Okay, so ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, न्यूक्लियोलस will also disappear. न्यूक्लियोलस भी गायब हो गया. ठीक है, अभी अपन बनाते हैं क्रोमोसोम्स. will draw only 2 color वाला. फाइन, बना दिए. यहाँ पे भी बना देते हैं. ओके, उसके बाद यहाँ पे देर इज रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे देर इज recombination. Similar it will go to this also. Yes, okay, done. This is what is called as prophase 2. okay, 2 सेल्स बन गए हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा है, न्यूक्लियोलस भी गायब हो रहा है. अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में. नेक्स्ट स्टेप क्या? नेक्स्ट स्टेप अभी जो है अपना, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मेटाफेज 2. ठीक है, मेटाफेज 2. तो अभी मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है?
Metaphase 2. Okay, now what is happening in metaphase is this. ठीक है, अभी देखो, now you must be knowing this. Okay, chromosomes क्या होंगे? Chromosomes will get arranged at the equator, बराबर, क्योंकि अभी उनको सेपरेट होना है. सो दे विल गेट अरेंज्ड एट इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेन, बराबर है. उसके बाद टू क्रोमैटिड्स, ओके, टू क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम two chromatids of each chromosome are separated by division of centromere. अभी centromere जैसे डिवाइड हो जाएगा वैसे क्रोमैटिड्स भी सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे. तो सेंट्रोमियर पहले डिवाइड होना चाहिए, उसके बाद क्रोमोसोम्स अपने आप सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है. सम स्पिंडल फाइबर्स जो बन गए हैं, दे विल अटैच टू द सेंट्रोमियर. ओके, वो लोग अटैच हो जाएंगे, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में अभी अपने को सेपरेशन कर देना है ना. तो देयरफॉर yes, the attachment will take place. Now let's understand diagrammatically. Diagrammatically क्या हो रहा है? Let's draw two circles again. एक, दो. Let's make it bigger. Okay. Now middle position में लाना है अभी अपने को. ठीक है, तो चलो let's bring them. Okay, followed by the other color. Something like this. यहाँ पे हमारे होंगे सेंट्रियोल, ओके. अभी कहाँ कहाँ पे ये अटैचमेंट हो जाएगा? जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे हो जाएगा. ठीक है. सो दिस अटैचमेंट इज टेकिंग प्लेस, देन फॉलोड बाय the rest of the fibers will also attach. Okay, now let's also exchange this recombination wala stuff. Okay, blue यहाँ पे this way. Okay, so this is what is metaphase 2. बीच में आ गए. दिस इज दिस एरिया इज योर इक्वेटोरियल प्लेन. ओके, दिस इज योर इक्वेटोरियल प्लेन. okay, and rest centrioles will release the spindle fibers, thereby attaching to the centromere. Fair enough. Moving on to the next phase. Next phase is Anaphase 2. Okay, the next phase which is there is called as Anaphase 2. Now Anaphase 2 के अंदर क्या हो रहा है? Understand this. The separated chromatids, जो chromatids separate हो गए, वो सारे chromatids के हम लोग बात कर रहे हैं. Okay, the separated chromatids now become daughter chromosomes. They are called as daughter chromosomes. Okay, yes, and they will move towards opposite poles पे निकल जाएंगे. ठीक है. and ये why important question is why does this process happens? ये chromosomes ऐसे कैसे, जो chromatid है वो ऐसे कैसे move हो जाते हैं?
ठीक है. Now understand this, the movement of the chromosome, the movement of the chromatid, I mean, is actually due to, it is actually is because of contraction of स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रोमैटिड्स क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं. ठीक है. नाउ डायग्रामेटिकली देखें कैसा दिख रहा है एनाफेज में. ठीक है. लेट्स ड्रॉ दिस अगेन. हियर a bit bigger in size. Yes. This way. Then you have this way. Yes. Okay. अभी पहला सेंट्रियोल बना, जो चीज़ें सिंपल है वो पहले बना लेते हैं. ओके. अभी क्रोमोसोम्स क्या हो चुके हैं, अभी क्रोमोसोम्स ना खिंच चुके हैं. ठीक है. दे आर कंप्लीटली सेपरेटेड. ओके. तो दे विल एक दो, look at the structure. Okay students, look at the structure, something like this, and then like this, like this. Similarly here spindle fibers will be there in place. Okay, something like this. So now let's color it. यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा पिंक, here and here. Okay, so this is the Anaphase 2. Anaphase 2. Notice carefully. Notice carefully. Spindle fiber की वजह से जो chromatid है वो खिंच चुके हैं. They have pulled towards the pole. Okay, and the last step. The last step which is there is what we call as telophase 2. Okay, telophase 2. So now let's understand what is telophase. Okay, the last step is telophase 2. अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, डॉटर क्रोमोसोम जो सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, अभी उनका काम हो गया ना. नाउ यू ओनली थिंक व्हाट विल हैपन, दे विल अनकॉइल. वेरी गुड. ओके, वो अनकॉइल हो जाएंगे. ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, nucleolus will yes, very good, it will reappear. हो गया ना. Now they will come back. ठीक है. That is what is happening in telophase 2. That's it. बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी कुछ है ही नहीं. ठीक है. So finally अभी देखो, अभी ये डायग्राम कैसे बनेगा. here. Okay, now इसको let me little bit keep it. Now न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुका है. Oh sorry, let me erase this.
यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुका है. For the sake of convenience, I'm not drawing it dotted. Okay, for the sake of convenience, nothing more reason to it. ऐसा. फिर इसके अंदर अपना एक क्रोमोसोम यहाँ पे. ओके, उसके बाद एक क्रोमोसोम यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम और यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम. ओके, लेट्स गो विद द अदर कलर. एक, दो, here also, here also. Let's color. And the other one. एक, दो. Yeah. So this completes your telophase 2. This completes your telophase 2. But अभी भी इसका बीच में साइटोकाइनेसिस होना बाकी है. ठीक है, अभी साइटोकाइनेसिस हम लोग कैसे करेंगे उसके पहले समझ लेते हैं कि साइटोकाइनेसिस में एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर. ओके, साइटोकाइनेसिस 2, बिकॉज साइटोकाइनेसिस 1 तो हम लोगों ने देख लिया. जैसे मियोसिस 1 खत्म हो गया वैसे ही साइटोकाइनेसिस 1 था. अभी मियोसिस 2 भी तो खत्म हो गया, तो अभी समझ लेते हैं साइटोकाइनेसिस 2. ठीक है, सो नाउ साइटोकाइनेसिस will happen after nuclear division. Only when the nuclear division is complete it will be followed by cytokinesis. ठीक है, now two haploid cells, important statement, two haploid cells are formed from each haploid cells. एक सेल से भी दो बनने वाले, एक सेल से दो बनने वाले. देखो ये स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, देयरफॉर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 4 haploid daughter cells. yes, 4 सेल्स फाइनली बन चुके हैं. ठीक है, एंड these cells will undergo further changes to form gametes. गैमेट्स बनने के लिए वो फर्दर चेंजेस जाएंगे. दिस इज साइटोकाइनेसिस 2. अभी साइटोकाइनेसिस 2 का डायग्राम कैसे दिखेगा, ये देखो, सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. इसका एक सेल बना, इसका एक सेल बना, इसका एक सेल बना, इसका एक सेल बना. ठीक है, मतलब समथिंग लाइक दिस. एक, दो, 3 and then you have 4. Let's draw nuclear membrane as well. ओके, अभी इनके अंदर एक ब्लू, दूसरा पिंक, फिर पिंक. लेट्स ड्रॉ पिंक फर्स्ट. Okay, now let's draw blue.
सॉरी यहाँ पे आएगा दिस रिकम्बाइंड वाला, ओके, इट विल नॉट बी हियर. This completes. This is what is called as cytokinesis. Khatam. This is your cytokinesis-2. This completes your Meiosis-1 and Meiosis-2 both. Okay. Abhi there's one more thing what we have to understand as far as meiosis is concerned, because meiosis plays a very very important role in evolution. You guys must understand this. So let's understand what is the basic role of meiosis. So let's understand the significance of meiosis. Okay. So the next pointer being significance of meiosis. Why meiosis is necessary, ये समझ लेते हैं अभी. कि चलो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है. meiotic division will lead to production of gamete. Okay, meiotic division will help in production of gametes. gametes बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है. सेकेंड अगर बाय चांस meiosis नहीं हुआ, if absent, what would happen? Just imagine the chromosome number, जो chromosome number है ना, that would double और quadruple. मतलब एक तो दुगने हो जाएंगे या फिर 4 गुने हो जाएंगे अगर meiosis, because meiosis is halving ना, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. अगर वो है ही नहीं तो डबल ट्रिपल डबल क्वाड्रपल होते जाएंगे, ठीक है. जिसकी वजह से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. नाउ दीज एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड नथिंग बट monstruocytes. They're called as monstruocytes. Okay. Third pointer, the constant number of chromosomes which are similar in a given species. Okay, the constant number of chromosome in any given species, okay, is maintained by meiosis. meiosis ये है जो उसको मेंटेन करता है. तो meiosis यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है. because of crossing over जो जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे एक्सचेंज हुआ ना, because of crossing over, ठीक है, what will happen? there is genetic variation. ये ना जेनेटिक वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज माइटोसिस में नहीं दिखते. सो अगर कुछ चेंजेस लाने हैं कोई ऑर्गेनिज्म में, कोई भी जेनेटिक मेकअप अगर चेंज करना है तो meiosis वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, because genetic variations are the raw materials. They are the raw materials for evolution. So evolution में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है. With this we have completed the entire topic of cell division, in which we understood what are the 3 different types of cell division. Yes, which was amitosis. We understood what is mitosis. We also understood what is meiosis. We understood cell cycle, which was very very important. We understood what are the phases, what are the different types of divisions. We understood different types of mechanisms or the processes which are happening inside the division. So therefore, long and short, we have covered
everything of the cell division. Yes, in the next module we will start with some another new chapter. Alright, my dear students, I hope you have understood the chapter, and with this the chapter is complete. Meet you in the next chapter. Thank you very much.